Hello everyone, I am Ajay Wag from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes for the 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. Today, we start with chapter number 5, that is CNC part programming. In first lecture, we discuss about the concept of CNC part programming. Learning outcomes achieved through this topic, that is CNC part programming. After completion of this lecture, learners will be able to first one, understand the concept of part programming, structure of part program, and steps to write a part program. Second one, concept of machine zero and workpiece zero. And third one, programming formats. Program outcomes achieved through this topic, that is CNC part programming, are given in the table listed below. Part programming. The part programming is set of machining instructions written in standard format for the NC or CNC machine. Part means वर्कपीस और जॉब जिसको हमें रिक्वायर्ड शेप एंड साइज प्रोवाइड करना होता है सीएनसी मशीन में. पार्ट को रिक्वायर्ड शेप एंड साइज देने के लिए जो प्रोग्राम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग लैंग्वेज उसको पार्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं. पार्ट प्रोग्रामिंग सेट ऑफ मशीनिंग इंस्ट्रक्शंस है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं सीएनसी मशीन के लिए. टाइप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग. फर्स्ट वन, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग. मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में मैन्युअली पार्ट प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का यूज करते हैं टू राइट अ पार्ट प्रोग्राम. CNC programmers write instructions for CNC machines where a computer is connected to the mill along with electrical drives and sensors for a complete system. This computer controls the movement of the machine axis. जो पार्ट प्रोग्राम लिखते हैं उसको प्रोग्रामर कहते हैं. Part programming can also be defined as the way in which the blocks of instructions are planned or written such that after its execution on the CNC machine, the required shape is obtained on the workpiece in minimum possible time. Part program means instruction in the form of G code and M code लिखते हैं in a block और block of instructions को रन करते हैं on a CNC मशीन जिसके वजह से वर्कपीस और जॉब को रिक्वायर्ड शेप दे सकते हैं इन मिनिमम पॉसिबल टाइम में. A part program is a series of coded instructions required to produce a part. It controls the movement of the machine tool and the on-off control of auxiliary functions such as spindle rotation and coolant. कंपोनेंट प्रोड्यूस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस सीएनसी मशीन टूल को प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग लैंग्वेज. पार्ट प्रोग्राम से सीएनसी मशीन टूल के मूवमेंट जैसे कटिंग टू मूवमेंट और वर्कपीस टेबल मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं और स्पिंडल का रोटेशन ऑन करना है या ऑफ करना है, कूलेंट ऑन करना है या ऑफ करना है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं. The coded instructions are composed of letters, numbers and symbols and are arranged in a format of functional blocks as in the following examples. जो कोडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का यूज करते हैं और उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखते हैं. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ये है ब्लॉक. ब्लॉक में इंस्ट्रक्शंस लिखते. सबसे पहले N10, G01, X5, Y2.5, F15. ब्लॉक को सीक्वेंस में पढ़ते हैं. N स्टैंड्स फॉर सीक्वेंस नंबर, G कोड यहाँ पे लिखा है G01
इसका मीनिंग होता है लीनियर इंटरपोलेशन मोड। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दिया है जो कि 5 mm दिया है, और उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद फीड रेट यहाँ पे लिखा है, उसके बाद स्पिंडल स्पीड भी लिखते हैं। इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, और इसको ही बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक में जी कोड, एम कोड, या जो मूवमेंट होता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, फीड रेट या स्पिंडल स्पीड, ये सारे चीजें ब्लॉक के अंदर लिखी जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट प्रोग्राम। एवरी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ first one, start of program. The program start is the program number. The program number begins with character or letter O. प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम नंबर से। प्रोग्राम नंबर स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर O से, उसके बाद 4 डिजिट के नंबर लिखते हैं। सेकंड वन, कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम। कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम में एनसी और न्यूमेरिकल कंट्रोल ब्लॉक लिखते हैं जो मिडिल पोर्शन होता है पार्ट प्रोग्रामिंग का। थर्ड वन इज एंड ऑफ प्रोग्राम। एंड ऑफ प्रोग्राम में यम कोड का यूज करते हैं। यम 30 कोड से मेन प्रोग्राम को एंड करते हैं और टेप को रिवाइंड करते हैं। यम 17 कोड से सब प्रोग्राम को एंड करते हैं। Start of program. It contains the program number, preparatory information like the operating mode, spindle start, coolant on, tool change, etc. Start of program में प्रोग्राम नंबर, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, इनपुट के बारे में, स्पिंडल का स्पीड और फीड रेट के बारे में ब्लॉक में लिखते हैं। यम कोड के माध्यम से स्पिंडल को ऑन करना है, टूल चेंज करना और कूलेंट ऑन करना, ये सारी इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम में लिखते हैं। कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम। इट कंटेन्स द मूवमेंट ऑफ द टूल इन द डिजायर्ड पाथ. Each block moves the tool such that the required path is generated till the program is executed. Contents of program में टूल का पाथ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन, टूल x डायरेक्शन में कितने मूवमेंट हो रहा है, y डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हो रहा है, z डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हो रहा है, इसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन मिडल पोर्शन और कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम में लिखते हैं। End of program. It contains the end remarks like move the tool to home position, coolant off, spindle stop, end program, etc. End of program में tool return to home position जो G28 कोड से डिनोट करते हैं, स्पिंडल का स्टॉप मूवमेंट, कूलेंट का ऑफ मूवमेंट, कटर कंपनसेशन कैंसल और प्रोग्राम एंड एंड टेप रिवाइंड के बारे में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स टू राइट पार्ट प्रोग्राम। द पार्ट प्रोग्राम varies from programmer to programmer. Also the program written for the same controller by different programmer may differ. पार्ट प्रोग्राम प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर वेरी होता है। सेम प्रोग्राम को डिफरेंट प्रोग्रामर डिफरेंट लिख सकते हैं। बट इन जनरल द फॉलोइंग प्रोसीजर कैन बी फॉलो टू राइट अ पार्ट प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेप इज स्टडी द गिवन कंपोनेंट केयरफुली। सबसे पहले जो पार्ट ड्राइंग होता है या पार्ट का ड्राइंग होता है गिवन कंपोनेंट का, उसको केयरफुली स्टडी करना होता है। सेकंड वन, डिसाइड द पाथ टू बी फॉलोड बाय द कटर। उसके बाद कटिंग टूल का या कटर का पाथ डिसाइड करना पड़ता है। सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन करना है,
वो कटिंग टूल का पाथ उसके बाद डिसाइड करना पड़ता है। थर्ड स्टेप इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ सेपरेट टेबल। उसके बाद जो कौन से सिस्टम से, एब्सोल्यूट सिस्टम और इंक्रीमेंटल सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम से पॉइंट्स को जो कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, उसको सेपरेट टेबल में लिखना पड़ता है। फोर्थ स्टेप इज देन स्टार्ट राइटिंग द इनिशियल ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम। उसके बाद इनिशियल और स्टार्टअप प्रोग्राम में कूलेंट ऑन करना है, स्पिंडल ऑन करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। फिफ्थ स्टेप इज the first few blocks are generally same for most of the programs. This gives the preliminary information about the machine and about the preparation of a machine. स्टार्टिंग के 4 ब्लॉक्स सेम होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम के लिए। उसमें हम प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि स्पिंडल ऑन करना है, कूलेंट ऑन करना है, रैपिड मूवमेंट देना है कटिंग टूल को, फीड रेट लिखना है, स्पिंडल स्पीड लिखना है। ये सारी चीजें हम स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम में लिखते हैं। सिक्स्थ स्टेप इज in the upcoming blocks the tool is moved from the first position till the last position। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम में फर्स्ट मूवमेंट से लेके लास्ट मूवमेंट तक या फर्स्ट मशीनिंग होने से लास्ट मशीनिंग होने तक का टूल का पाथ एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में लिखना पड़ता है। सेवंथ स्टेप इज आफ्टर द लास्ट टूल पोजीशन इज मशीन ब्रिंग द टूल अबोव द वर्कपीस सरफेस। उसके बाद मशीनिंग होने के बाद कटिंग टूल को वर्कपीस सरफेस के ऊपर लाना पड़ता है। और लास्ट स्टेप इज फाइनली द एंड ब्लॉक्स आर कॉमन फॉर ऑल द प्रोग्राम। लास्ट में हम एंड ऑफ प्रोग्राम में कूलेंट ऑफ करना है, स्पिंडल ऑफ करना है या मशीन को स्टॉप करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं एट द फाइनल एंड ऑफ द ब्लॉक्स। पोजीशंस ऑफ कटिंग टूल ऑन CNC मशीन। फर्स्ट वन इज मशीन 0 और होम पोजीशन ऑफ अ कटिंग टूल। Definition: the position on the machine which is specified by the manufacturer and with respect to which all other points are defined is called as machine 0। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो, ये है कटिंग टूल और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मशीन 0 पॉइंट। और ये मिलिंग मशीन में दिस वन इज अ machine 0 point of a cutter, milling cutter. It is also called as home position or machine reference point or grid 0 or machine 0। मशीन 0 को ही मशीन का होम पोजीशन बोलते हैं और मशीन रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं और ग्रिड 0 और मशीन ओरिजिन भी कहते हैं। Machine 0 represents the position of the cutting tool when the tool is at home position। Machine 0 point ऐसा पॉइंट होता है जहां जिसमें कटिंग टूल अपने होम पोजीशन में होता है। This is a position specified by the manufacturer of the machine। The position of the machine 0 point generally varies from manufacturer to manufacturer। मशीन 0 पॉइंट डिसाइड करता है मैन्युफैक्चरर ऑफ द मशीन दैट मशीन टूल। जनरली दिस पॉइंट इज वेरी होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट मशीन टूल। दिस पोजीशन is always fixed for a particular machine and is known to the controller। It has not to be mentioned anywhere in the program as it is already informed to the controller by the manufacturer। मशीन 0 पोजीशन फिक्स होता है और ये मशीन कंट्रोलर और
एमसीयू को ये पॉइंट पता होता है। मशीन जीरो पॉइंट पार्ट प्रोग्राम में कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है। It is the origin of a machine coordinate system. All other zeros are set with respect to machine zero. This point is located at the farthest position direction along the x, y and z axis. मशीन जीरो पॉइंट मशीन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन होता है। मशीन जीरो पॉइंट से ऑल अदर पॉइंट्स को मार्क और सेट करते हैं। मशीन जीरो पॉइंट्स एक्सट्रीम फारदेस्ट और दूर का पॉइंट होता है ऑन एनी CNC machine tool in X, Y and Z direction. The machine is set to this point while loading and unloading of the workpiece. जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो, this is a machine origin point of on a lathe machine. ये farthest point है in X, Y and Z direction. यहाँ से कटिंग टूल ट्रेवल करता है टुवर्ड्स द वर्कपीस। ये मशीन पॉइंट है, मशीन जीरो पॉइंट है ऑन अ CNC मिलिंग मशीन का। Second one is workpiece zero or program zero position. It is the position of the cutting tool on the workpiece with respect to the workpiece. It can selected anywhere on the workpiece. वर्कपीस का जीरो पॉइंट सेट होता है ऑन अ वर्कपीस सेंटर पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ वर्क जीरो पोजिशन on a workpiece in lathe machine and this one is a work zero position on a milling machine work table or milling machine workpiece. Generally it is the southwest position, that is left corner near the operator of the workpiece in case of milling. In case of turning it is the front face and at the center of the cylindrical workpiece, that is extreme right position away from the chuck. Generally वर्कपीस जीरो पॉइंट और प्रोग्राम जीरो पॉइंट लेफ्ट साउथ वेस्ट लेफ्ट कॉर्नर होता है इन अ मिलिंग मशीन एंड वर्कपीस का सेंटर पॉइंट होता है इन अ CNC लेथ मशीन में। दिस वन इज अ वर्क जीरो पॉइंट ऑन अ CNC लेथ मशीन एंड दिस वन इज अ वर्क जीरो पोजिशन ऑन अ CNC मिलिंग मशीन. This position is specified by the part programmer and may vary for different program. वर्क जीरो पॉइंट और प्रोग्राम जीरो पॉइंट स्पेसिफाइड करता है पार्ट प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम लिखता है वो स्पेसिफाइड करता है वर्क जीरो पोजिशन, और ये वेरी होता है फॉर अ डिफरेंट प्रोग्राम और प्रोग्राम टू प्रोग्राम। दिस पॉइंट इज अ वेरी होता है। The entire program is written with respect to the workpiece zero position. जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो कंसिडर करते हैं सबसे पहले वर्कपीस जीरो पोजीशन, उसके हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट वर्कपीस का हम कैलकुलेट करते हैं। After the workpiece is mounted on the table, the workpiece zero is to be informed to the controller by setting offset through the control panel. आप फिगर में देख सकते हो, this one is a workpiece zero position on a milling machine and this one is a workpiece zero position on a lathe machine. यहाँ से coordinates find out करते हैं in x, y and z direction में। NC words or numerical control words. The most important component in the CNC system is the part programming. Even a slight error in the program can change the dimensions of the final component. The part programming uses various words like G word, N words, etc. to write a CNC program. पार्ट प्रोग्राम में वेरियस जी वर्ड्स और एन वर्ड्स का यूज होता है टू राइट अ CNC पार्ट प्रोग्राम.
These words are called as NC or numerical control words. A CNC word is a collection of characters used to form an instruction. The different NC words are explained below. First one is sequence number or N words. The first word in every block is the sequence number. The sequence number is used to identify the block. The sequence number is preceded by letter N and is written N001, N002, etc. The program is executed from lowest block number to highest block. The block may proceed in the steps of 5 or 10 so as to insert the accidentally omitted blocks. एवरी ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला वर्ड सीक्वेंस नंबर होता है. सीक्वेंस नंबर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं. सीक्वेंस नंबर कैपिटल लेटर एन से शो करते हैं. सीक्वेंस नंबर इन अ स्टेप ऑफ 5 और 10 लिखते हैं. अगर कोई ब्लॉक एक्सीडेंटली नहीं लिखा गया तो उसको हम बाद में वो ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते हैं इन बिटवीन दैट ब्लॉक. दैट्स वाई सीक्वेंस नंबर का जो ब्लॉक होता है इन अ स्टेप ऑफ 5 और 10 लिखते हैं. सेकंड वन इज preparatory functions, or it is also called as G words. The preparatory word prepares the control unit to execute the instruction given in the part program. Preparatory function और G code मशीन टूल को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं. मूवमेंट देने के लिए, जैसे रैपिड मूवमेंट देना है, एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट देना है, तो उसके लिए जो मशीन टूल को प्रिपेयर करते हैं वहां पे हम जी वर्ड्स का यूज करते हैं. थर्ड वन इज miscellaneous functions or M words. The miscellaneous functions are used to specify certain miscellaneous functions like spindle start and stop, coolant on and off. Miscellaneous functions स्पिंडल को स्टार्ट करने के लिए, स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए, कूलेंट को ऑन करने के लिए और कूलेंट को ऑफ करने के लिए जो यम वर्ड्स यूज करते हैं उसको हम बोल सकते हैं मिसलेनियस फंक्शंस और यम वर्ड्स. Fourth one is coordinates system, that is X, Y and Z words. These words give final coordinates positions for X, Y and Z motions. In CNC lathe, there are only two linear axes, X and Z. X is perpendicular to the spindle axis and Z is along the spindle axis. CNC लेथ मशीन में दो लिनियर एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होता है स्पिंडल को और जेड एक्सिस अलोंग द स्पिंडल एक्सिस होता है. जेड एक्सिस अलोंग द स्पिंडल एक्सिस होता है लेथ मशीन में. इन सीएनसी मिलिंग देयर आर थ्री लिनियर एक्सिस, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस. एक्स एंड वाई एक्सिस आर हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हाइल जेड इज वर्टिकल एक्सिस. मिलिंग मशीन में जो वर्टिकल एक्सिस होता है वहां पे हम स्पिंडल का एक्सिस बोलते हैं. टू स्पेसिफाई एंगुलर पोजीशंस अराउंड दिस लिनियर एक्सिस, आई, जे एंड के एक्सिस आर यूज्ड. Fifth one is feed function or F word. The feed function is used to specify the feed rate in the machining operation. The feed rate is expressed in mm per minute or mm per revolution. For example, if feed is 120, then it will be represented as F120, but appropriate G code should be specified to instruct the machine whether the feed value is in mm per minute or mm per revolution, that is G94 or G95. सपोज फीड 120 दिया है तो उसको रिप्रेजेंट करते बाय मीन्स ऑफ एफ वर्ड, दैट इज F120. बट फीड mm पर मिनट में है और mm पर रिवोल्यूशन में है, वो दर्शाने के लिए जी कोड का यूज होता है. जैसे G94 से हम G94 कोड से हम फीड mm पर मिनट से शो कर सकते हैं और G95 कोड से
जो फीड होता है वो होता है, शो कर सकते हैं एमएम पर रिवोल्यूशन। सिक्स्थ वर्ड इज स्पिंडल स्पीड फंक्शन, और इसको ही बोलते हैं हम यस वर्ड। द स्पिंडल स्पीड इज स्पेसिफाइड इन revolutions per minute or rpm. If the machine runs at 1200 rpm, then the speed will be specified as yes 1200 और yes 1200 rpm. स्पिंडल स्पीड का फंक्शन यस वर्ड यस से शो करते हैं और उसके आगे उसका rpm लिखते हैं। नेक्स्ट वन इज टूल सिलेक्शन फंक्शन और टी वर्ड। The T word is needed only for machines with automatic tool changer. The ATC keeps a record of which tool is kept at what location. For example, if tool number 06 is drilling tool, then the command will prompt as T06. That is, tool number 06 should be used next. टूल सिलेक्ट करने के लिए टी वर्ड का यूज करते हैं इन पार्ट प्रोग्राम। जनरली जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है उसको नंबर से टूल सिलेक्शन नंबर T1 T2 ऐसा दिया रहता है ड्रम में, टूल मैगजीन में, और वहां से स्पेसिफाइड टूल को हम सिलेक्ट करते हैं इन पार्ट प्रोग्राम में। प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स। फॉर्मेट इज द मेथड ऑफ राइटिंग द वर्ड्स इन अ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। पार्ट प्रोग्रामिंग में वेरियस एएनसी वर्ड्स ब्लॉक में लिखने के लिए जो मेथड होती है उसे फॉर्मेट कहते हैं। वेरियस एएनसी वर्ड्स आर यूज्ड टू राइट वन ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। ब्लॉक लिखने के लिए वेरियस एएनसी वर्ड्स का यूज होता है इन अ पार्ट प्रोग्रामिंग में। ईच ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सेपरेटेड बाय एन एंड ऑफ ब्लॉक और एंटर सिंबल। Until the controller executes the current block, it does not jump to the next block of instruction. A का ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर जंप कर सकते हैं फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इन जनरल द ब्लॉक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लुक एज शोन बिलो। यहाँ पे ब्लॉक दिया है, ये फॉर्मेटिंग है एनी एनसी वर्ड्स लिखने का, इसको ही हम बोल सकते हैं ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें वेरियस इंस्ट्रक्शन लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनसी वर्ड्स। यहाँ पे लिखा है N10, G90, G21, G94, G40 एंड एंड ऑफ ब्लॉक। इसमें वेरियस जी कोड्स दिया है। सबसे पहले सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट करती है प्रोग्राम लिखने के लिए और उसमें जी कोड लिखा है। नेक्स्ट ब्लॉक इज N20 जिसमें M कोड लिखा है M03, स्पिंडल स्पीड 1100 rpm, M08 and end of block. There are different types of programming format. First one is fixed block format, second one is tab sequential format, and third one is word address format. Let us see these formats one by one. First one is fixed block format. In fixed block format, instructions are always given in same sequence. फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट में मशीन इंस्ट्रक्शन को सेम सीक्वेंस नंबर में लिखते हैं। All the instructions must be given in every block, including those instructions which remain unchanged from the preceding blocks. फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट में ईच ब्लॉक में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जो पहले ब्लॉक में इंस्ट्रक्शन आते हैं वो चेंज नहीं हुए तो भी नेक्स्ट ब्लॉक में सेम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। यहाँ पे फिगर में ड्रिलिंग ऑपरेशन का पार्ट और कंपोनेंट दिया है। फर्स्ट होल का डिस्टेंस वर्क जीरो पोजीशन से एक्स डायरेक्शन में 20 mm दिया है और सेकंड होल का डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में वर्क जीरो पोजीशन से 90 mm दिया है। वैसे ही फर्स्ट होल का डिस्टेंस वर्क जीरो पोजीशन से वाई डायरेक्शन में 30 mm दिया है पहले होल के लिए, और सेकंड होल के लिए वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस दिया है
from work 0 position 30 mm। यहाँ पे ब्लॉक्स लिखे हैं। पहला ब्लॉक है, सीक्वेंस नंबर है पहला 0050। यहाँ पे जी कोड दिया है 00 और सेकंड ब्लॉक में भी जी कोड दिया है 00। यानी यहाँ पे फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट में जो प्रीसीडिंग ब्लॉक का में नंबर रहता है सेम नंबर यहाँ पे लिखना पड़ता है। एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस दिया है पहले ब्लॉक में 20 mm फॉर फर्स्ट होल और सेकंड होल के लिए डिस्टेंस दिया है 90 mm। यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हुआ है तो भी लिखना पड़ता है। वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस दिया है फॉर फर्स्ट होल के लिए 30 mm और सेकंड होल के लिए भी 30 mm है। तो यहाँ पे डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ है तो भी सेकंड ब्लॉक में वो डिस्टेंस लिखना पड़ता है। वैसे ही जेड डायरेक्शन का डिस्टेंस दिया है 00। फीड रेट दिया है यहाँ पे 150 mm पर मिनट फॉर फर्स्ट ब्लॉक के लिए। सेम फीड रेट हमको यहाँ पे सेकंड ब्लॉक में भी चेंज नहीं हुआ है तो भी लिखना पड़ता है। स्पिंडल स्पीड दिया है 1000 आरपीएम पहले ब्लॉक में, सेकंड ब्लॉक में भी वही सेम हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे एट द एंड ऑफ ब्लॉक लिखा है और यहाँ पे भी एंड ऑफ ब्लॉक लिखा है। यानी जो प्रीसीडिंग ब्लॉक में नंबर्स रहते हैं वो चेंज नहीं हुए तो भी सेकंड ब्लॉक में वो नंबर लिखना पड़ता है इन अ फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट मेथड में। दिस इज अ common formatting method in all part programming. Second one is tab sequential format. In this programming format, instruction in a block are always given in the same sequence, similar to fixed block format. Tab sequential format as like as fixed block format में ही होता है, जिसमें भी सेम सीक्वेंस और सिमिलर सीक्वेंस में ब्लॉक लिखते हैं, but each word is separated by the tab character. It has one advantage over the earlier format that if a word remains the same as in preceding block, it need not be written again, but to maintain sequence of words, tab only should be written in the succeeding block. टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट में मशीन इंस्ट्रक्शन सेम सीक्वेंस में लिखते हैं जैसे फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट में लिखते हैं। ईच वर्ड को सेपरेट करते हैं बाय मींस ऑफ टैब लेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लॉक लिखा है, इस सीक्वेंस नंबर पहला है 0050, इसके बाद टैब लेटर लिखा है। सेकंड ब्लॉक लिखा है 0060, यहाँ पे भी टैब लिखा है। जी कोड यहाँ पे लिखा है 00, टैब लिखा है। सेम जी कोड आया तो यहाँ पे जी कोड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टैब लेटर लिखा है। एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस 20 mm दिया है, इसके बाद लिखा है टैब लेटर। सेकंड होल के लिए 90 mm दिया है, 90 सेकंड ब्लॉक में लिखा है 90 टैब लेटर। वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस दिया है फर्स्ट होल के लिए 30 mm, वो यहाँ पे लिखा है 30 टैब। सेकंड होल का भी डिस्टेंस 30 mm है वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बट सेपरेट करने के लिए यहाँ पे टैब लेटर लिखा है। वैसे जेड डायरेक्शन का डिस्टेंस दिया है, जेड 00 टैब लिखा है। सेकंड ब्लॉक में वही सेम लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टैब लिखा है। फीड रेट दिया है यहाँ पे 150 mm पर मिनट, पहले ब्लॉक में 150 टैब लिखा है। सेकंड ब्लॉक में सेम फीड रेट है तो यहाँ पे सेम फीड रेट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टैब लिखते हैं। वैसे ही स्पिंडल स्पीड दिया है यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000 लिखा है। सेकंड ब्लॉक में स्पिंडल स्पीड लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में ईच ब्लॉक को सेपरेट करते हैं बाय मींस ऑफ एंड ऑफ ब्लॉक लेटर से। दिस इज अ टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट। टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट में ईच लेटर के और ईच फॉर्मेट के बाद टैब लेटर और टैब कैरेक्टर लिखते हैं। थर्ड वन इज वर्ड एड्रेस फॉर्मेट. It has one advantage over the earlier format that if a word remains the same as in preceding block,
it need not be written again. As such, the program shortens because only those words are required to be written which change from one block to other. For example, यहाँ पे दो ब्लॉक लिखे हैं. पहला ब्लॉक है 0050, या ये पहला ब्लॉक हो गया, और ये दूसरा ब्लॉक है यहाँ पे लिखा है. यहाँ पे सीक्वेंस नंबर दिया है पहले ब्लॉक के लिए 0050, जी कोड दिया है यहाँ पे पहले ब्लॉक के लिए G00. सेम जी कोड दूसरे ब्लॉक के लिए है तो लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे पहले होल के लिए डिस्टेंस दिया है x डायरेक्शन में 20 mm, तो यहाँ पे लिखा है पहले ब्लॉक में. दूसरे होल के लिए डिस्टेंस दिया है 90 mm इन x डायरेक्शन. यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हुआ है तो सेकंड ब्लॉक में हमने डिस्टेंस लिखा है. y डायरेक्शन का डिस्टेंस दिया है पहले होल के लिए 30 mm, तो हमने पहले ब्लॉक में लिखा है. सेम डिस्टेंस दिया है 30 mm फॉर सेकंड होल के लिए, तो सेम डिस्टेंस होने की वजह से सेकंड ब्लॉक में नहीं लिखते हैं. वैसे ही z डायरेक्शन का डिस्टेंस दिया है 0, तो सेकंड ब्लॉक में सेम डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. फीड रेट दिया है यहाँ पे 150 mm पर मिनट, तो पहले ब्लॉक में लिखा है तो सेकंड ब्लॉक में लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. वैसे स्पिंडल स्पीड दिया है यहाँ पे 1000 rpm पहले ब्लॉक के लिए, तो सेकंड ब्लॉक में सेम स्पिंडल स्पीड होने की वजह से यहाँ पे दूसरे ब्लॉक में लिखने की जरूरत नहीं होती है इन वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में. वर्ड एड्रेस फॉर्मेट से हम जो राइटिंग है दोबारा लिखने की यहाँ पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से हम शॉर्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं इन वर्ड एड्रेस फॉर्मेटिंग मेथड से. वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको मेमोरी स्पेस भी कम लगता है. Review of today's lecture. In today's lecture, we discuss about the first one, part programming, structure of part programming, steps to write a part program. Second one, programming formats. इसमें हमने फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद वर्ड एड्रेस फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया. Unit outcome achieved through this topic, that is CNC part programming. Interpret the given CNC part programming code. Program outcomes achieved through this topic, that is CNC part programming, are given in the table listed below. Most likely questions asked in MSBT examination on this topic are: first question is define part programming. Second question is what is machine zero position in CNC machine. Third question is what is work zero position in CNC machine. Fourth question is what are the general steps to write a part program. Fifth question is what is the structure of a part program. ये 5 क्वेश्चन आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके प्रॉपरली आंसर लिखना है. If you have any query regarding the writing of answer, then please call me. Thank you very much. Keep learning and happy learning. In next lecture, we discuss about the G codes and M codes.